Hello, my dear friends. I hope you guys are doing good. Till now, we have completed the first two chapters of class 10th chemistry, and today I am beginning with the third chapter, which is metals and non-metals. This is an introductory lecture, and in this lecture, we will try to understand these two terms, metals and non-metals. We will also see some of their properties in brief. But before that, let us try to understand that which part of the matter family we are going to understand or we are going to study in this chapter. Obviously, metals and non-metals are the part of the matter family. So let us see the matter classification chart so that it becomes very easy for you to understand the context of this chapter. So students, I believe that you are familiar with this chart. Matter is initially classified into pure substances and mixtures. Pure substances are further classified into compounds and elements. Mixtures are classified into homogeneous and heterogeneous mixtures, and these are further classified into solution, suspension, and colloid. I hope that you have studied about these in class 9th. About compounds, we have studied a lot in the previous chapter in the form of acids, bases, and salts. And in this chapter, we have to study about the elements in detail. Especially, elements are classified into metals, metalloids, and non-metals. In this chapter, we will focus on these two terms, metals and non-metals. We have to study this part of the matter family. About metalloids, you will study in the higher classes in detail, but about metals and non-metals, we will see their properties in this chapter. So I hope अब आपको समझ में आ गया होगा that matter का कौन सा part हम लोग इस chapter में पढ़ने वाले हैं. Now let's see the different sections of the chapter. So students, to understand about these two substances, the whole chapter has been divided in these four sections. The first one is properties of metals and non-metals, and under this section we will study about the physical and chemical properties of metals and non-metals. Obviously किसी भी substance को समझने के लिए उनकी properties को समझना बहुत ज़रूरी है. The next section is about how do metals and non-metals react, and in this section we are going to study about the compound formation of metals and non-metals. ओके वो किसी दूसरे सब्सटेंस से कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसा कंपाउंड फॉर्म करते हैं. अंडर दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आल्सो अबाउट देयर प्रॉपर्टीज. द थर्ड सेक्शन इज अकरेंस ऑफ मेटल्स, एंड अंडर दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द origin of metals. We will study about their minerals, we will study about the ores in which the metals are present, and the process of extraction of the metals from those ores. And the fourth section is corrosion and its prevention. It means in this topic we are going to study the corrosion process, क्या क्या condition होने चाहिए for the corrosion process and उनको कैसे बचाएंगे, about its prevention. So overall it's a very interesting topic and you will learn a lot about chemistry in this chapter. So you have to pay attention. In the upcoming 6 to 7 lectures the chapter will be over, and what you have to do is just focus and make notes of the concepts which you will learn from here. Okay, so now let us try to understand the term metal, or we will see the definition of metal. So students, metal are those elements which are malleable and ductile, which conduct heat and electricity, and the most important, which form positive ions by losing or donating electrons. So now let us try to understand these 3 points. So metals are those elements which are malleable and ductile. Malleable का मतलब क्या होता है? अगर किसी मेटल को बाय हैमरिंग शीट के शेप में बना दिया जाए तो उस प्रॉपर्टी को malleability कहते हैं, एंड मेटल आर malleable. डक्टाइल का मतलब क्या होता है? दैट अगर किसी मेटल को बाय स्ट्रेचिंग खींच करके एक वायर का फॉर्म दिया जाए, वायर बना दिया जाए, देन द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी
and metals are malleable and ductile. The second point is metals are conductor in the sense they conduct heat as well as electricity. Metals are good conductors of heat and electricity. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है. एंड द थर्ड पॉइंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है समझना, दैट मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो अपने शेल में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर लूज करते हैं एंड खुद पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं. एंड ड्यू टू दिस मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. ये याद रखना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. ठीक है, सो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर है. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मेटल. द फर्स्ट वन इज आयरन, द सेकंड एल्यूमिनियम, कॉपर, कुछ आप भी गेस करते रहो अपने दिमाग में, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स. टिन, लेड, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. All of these are the examples of metals. Now let us see some of the interesting facts related to metal, and this will give you some extra edge, है ना. So most abundant metal in the earth crust, क्या आप guess कर सकते हो? It's aluminium and the amount is about 7%. Second most abundant metal in the earth crust, ये कौन सा है? Guess करिए. It's iron and its amount is about 4%. Now let's see some of the major metals in the earth crust. और ये जो ऑर्डर है हम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे. सो द फर्स्ट वन विल बी एल्यूमिनियम, सेकेंड आयरन, एंड देन कैल्शियम, एंड देन सोडियम, एंड देन उससे कम अमाउंट में है पोटेशियम, एंड देन मैग्नीशियम. सो क्लियर है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा है? एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, एंड देन मैग्नीशियम. आई होप ये जो मेटल का पोर्शन है ये आपको क्लियर हो गया. नाउ लेट्स सी अबाउट नॉन मेटल्स. सो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल, which do not conduct heat and electricity, and the most important, which form negative ions by gaining or accepting electrons. Let's try to understand these 3 points. So non-metals are those elements which are brittle. Brittle कहने का क्या मतलब है? That when we apply the hammering process on any non-metal, then वो चूर हो जाता है. जैसे मेटल्स क्या होते हैं, बाय हैमरिंग प्रोसेस उनको एक शीट का फॉर्म दिया जा सकता है, बट नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं है. व्हेन वी अप्लाई द हैमरिंग प्रोसेस ऑन द नॉन मेटल्स, वो चूर हो जाते हैं, है ना. एंड ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द ब्रिटल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल्स. द सेकंड पॉइंट इज नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स दैट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स. इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, कुछ एक्सेप्शन भी हैं. सो इसे भी हम समझेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स, बट फॉर द टाइम बीइंग आप ये बात ध्यान में रखो कि that non-metals are bad conductors of heat and electricity. And the third point is very important, and you should try to understand this, that non-metals form negative ions by gaining or accepting electrons. अब ये gaining and accepting का क्या मतलब है? That they will accept the electron in their outermost shell, and due to acceptance of electrons उन पे negative charge आ जाएगा, and due to this property non-metals are called electronegative elements. Electronegative elements. So I hope ये definition clear है. Now let's see some of the examples of non-metal. The examples are carbon, sulfur, nitrogen, oxygen, chlorine, argon, hydrogen, helium. So these are some of the examples of non-metals. अब जो एक बात ध्यान रखना है, दैट यहाँ पर मैंने सिर्फ NOCl या फिर H लिखा है,
आई एम यूजिंग द सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट। मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली नाइट्रोजन को N2 लिखा जाता है, बट यहाँ पर आई हैव रिटन N। व्हाट आई मीन टू एक्सप्रेस इज आई हैव यूज्ड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, सो ये नाइट्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ना कि मॉलिक्यूल है। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नॉन मेटल्स। The number of total metals in the nature is around 90 and the number of non-metals is only 22. But ऐसा होते हुए भी जो amount है, the abundance of non-metals on the earth is much higher than that of the metals. अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, देन एलिमेंट्स में नॉन मेटल जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, ऑल्दो द नंबर ऑफ डिफरेंट नॉन मेटल्स आर मच लेसर देन द number of metals. Most abundant non-metal in the earth crust, can you guess कौन सा है? This is oxygen. And how much is the amount? It is around 50%. अर्थ क्रस्ट में 50% जो है अराउंड ये ऑक्सीजन है सिर्फ। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल कौन सा है? इट्स सिलिकन। सिलिकन कहाँ पाया जाता है? बालू में। सैंड क्या है? सैंड हर जगह है ना, सॉइल में है, बाकी रेगिस्तान तो सैंड का ही होता है। देन सिलिकन, और सैंड किसका बना होता है? सिलिकन ऑक्साइड, यानी सिलिकन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर। सो सेकेंड अबंडेंट मेटल क्या है? सिलिकन। इसका अमाउंट गेस करिए, इट्स 26%। सो सिर्फ इन दोनों नॉन मेटल से कितना हो गया? हो गया 76%, यानी कि 3/4। सोच लो कितना ज़्यादा अमाउंट है ये। नाउ लेट्स सी मेजर नॉन मेटल्स, ऑब्वियसली इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द अर्थ क्रस्ट। So the most abundant is oxygen, then silicon, followed by phosphorus and then sulfur. ठीक है, so I hope ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया है। Now let us see some of the properties of metals and non-metals in brief. Okay, और इनकी प्रॉपर्टीज जो है, मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो है, हम इनके कंपैरिजन के आधार पर देखते हैं। इससे क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन भी हो जाएगा और आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी, एक बेसिक समझ डेवलप हो जाएगी दैट मेटल एंड नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है ना। सो लेट्स सी दैट। वैसे तो मुझे ये कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा देने के बाद बताना चाहिए था, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक इनिशियल इम्प्रेशन मिल जाए दैट किसी भी मेटल और नॉन मेटल को कैसे समझेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ का एक ब्रीफ इम्प्रेशन आपको मिल जाए, ताकि अगले लेक्चर में जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ें देन आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट दैट मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल अभी आपको समझा दिया। दैट मेलिएबल मतलब किसी भी मेटल को शीट का फॉर्म दिया जा सकता है, एंड डक्टाइल मतलब किसी भी मेटल को वायर के फॉर्म का शेप दिया जा सकता है। ब्रिटल मतलब नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। यहाँ पर आप और भी ऐड कर सकते हो दैट मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल कहने का क्या मतलब है? किसी भी नॉन मेटल को हैमर से पीटते हैं देन वो चूर हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द ब्रिटल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एकदम क्लियर है, स्पष्ट रूप से। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स। ओके, कुछ एक्सेप्शन है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। मेटल्स आर लस्चरस। लस्चरस कहने का क्या मतलब है? दैट मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। उनका जो सरफेस है वो शाइन करता है ना। एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उनका सरफेस शाइन करता है। नॉन मेटल का क्या होता है? अपीयरेंस डल होता है, उनका सरफेस शाइन नहीं करता है, सो दे आर नॉन लस्चरस। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज द ओनली लिक्विड मेटल इन द रूम टेम्परेचर। बट नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। मतलब डिफरेंट नॉन मेटल्स हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों फॉर्म में नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड टफ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग? मतलब इसके डोले शोले होंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। ये मेटल है, इसका स्ट्रॉन्ग कहने का क्या मतलब है? दैट इनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी, ये बहुत सारा भार सह सकते हैं, इनकी टॉलरेंस क्षमता ज़्यादा है।
ये स्ट्रांग का मतलब है। टफ का क्या मतलब है? दैट अगर किसी मेटल को इम्पैक्ट एनर्जी दिया जाए, मतलब सडन एनर्जी दिया जाए, सडन लोड दिया जाए, तो उस एनर्जी को मेटल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। एंड जो ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है इम्पैक्ट एनर्जी का, ये टफनेस कहलाता है। सो मेटल्स आर स्ट्रांग एंड टफ, बट नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया दैट अगर किसी नॉन मेटल को इम्पैक्ट एनर्जी देंगे, इम्पैक्ट एनर्जी कैसे देंगे? ऑब्वियसली हैमर से पीटेंगे। हैमर से जैसे ही पीटेंगे वो चूर हो जाएगा, मतलब वो अपना शेप तो रिटेन कर ही नहीं पाया ना, उसका शेप तो चेंज हो गया। सो दीज आर नॉट स्ट्रांग एंड नॉट टफ, है ना। नाउ ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, एंड दीज थ्री आर द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स। सो नॉर्मली जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स कहने का क्या मतलब है? अगर हम लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे देन जो रेड कलर का लिटमस है वो ब्लू कलर को शो करेगा, ये हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड का क्या मतलब है? दैट मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड को अगर हम लिटमस पेपर, अगर उसका सॉल्यूशन लेकर के लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे देन ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ये भी पिछले चैप्टर में पढ़ा है हमने। मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम H2O। मेटल वाटर से रिएक्ट करता है एंड उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। बट नॉन मेटल्स जो है नॉर्मली वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यानी कि मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं एंड उसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। ये एज ए प्रॉपर्टी भी पढ़ा था हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी में, दैट हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स। सो एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल प्रोड्यूस H2 हाइड्रोजन गैस। मेटल्स के केस में क्या है? मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं या फिर डिस्प्लेस करते हैं। बट नॉन मेटल्स क्या है? जनरली एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। सो ये एक बेसिक कंपैरिजन हो गया। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बातें समझाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड अगर आपको कोई डाउट है देन आप इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, हम उनको सॉल्व करने का बिल्कुल ट्राई करेंगे। एल्स यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, सो दैट यू कैन गेट the content, the question and answers related to this topic, and you can also interact with us. You can post your doubts in the telegram group and we will definitely try to solve it. In the next lecture we will study the physical properties of metals and non-metals in detail. So that's all for today's video. Thank you. Good luck.